दत्ता जी आ गए हैं लाइन में। और दत्ता जी आ गए क्या? जी अच्छा सर। दत्ता जी लाइन में है। मिस्टर दत्त नमस्कार। नमस्कार। दत्ता जी लाइन में आए हैं। दत्त जी को सुनाई नहीं। ये है ना जो 1 2 3 4 5 जो इसमें है। नहीं दत्ता जी ओ, हाँ दत्ता जी वही 1 2 3 4 में है। हाँ 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 वही वही। इसको बंद कर दे, ऐसे ही चलाएंगे थोड़ा देर। ऐसे क्यों बताते हैं? एक घंटा দিয়েছিস না না দিয়েছিস আরে আপ 75 দাও
क्या बोला? हाँ ज्वाइन कर लो दिया है। ठीक ठीक है, आप कनेक्ट रहिए। वाह वेरी गुड। বাপ্পাটা তো ঘুমোচ্ছে রে, হ্যাঁ বাপ্পা তো কিছু মনে হচ্ছে সে তো। বাপ এই তো বাপাদা হ্যাঁ দেখতে পেয়েছি। চন্দন না কই লাইনে? और ये कुछ नहीं है, और बताएं आपको क्या आपको सबको देखना है। ठीक है, अभी आपको जो है रवि जी के मोबाइल पे व्हाट्सएप करता हूँ डाटा, ईयर का डाटा। हाँ क्या बोल रहे हैं? স্টার্ট করবেন নাকি 5 মিনিট ওয়েট করুন, আরো আর একটু ওয়েট করুন। সবাই সবাই লগ ইন করতে চাইছে, হচ্ছে না, একটু ওয়েট করতে হচ্ছে। ঠিক সবাই আছে হচ্ছে। ঠিক আছে। আরো অনেকজন আছেন যারা অনলাইনে আসতে চাইছেন, ও না ওকে
হ্যালো, হ্যাঁ কখন শুরু হবে? এই জাস্ট সবাই লিংক করছে, ঢুকতে আসিতে আছে। কত হেডস হলে স্টার্ট হবে সেটি আমি জানতে চাইছি। স্টার্টটা এমনি করে দিল আপনার। दादा विशुदा बोलून विश्वरूपदा, बोलून बोलून आप शुरू कीजिए। वो लोग धीरे धीरे सब ज्वाइन कर रहे हैं। ঠিক আছে। एक मिनट आरेकटा जॉइन करी। ऋषि तो Asus वाला ले, वो तो बेटर है उससे। 15 इंच का ही ले, तो 14 इंच का मत ले। 14 इंच का एक जो भेजियो प्रोग्राम। दादा विश्वरूपदा शुरू कीजिए। सब धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। ঠিক আছে। সুনীল জি স্টার্ট করবেন। আমি স্টার্ট করছি, বিশ্বরূপে স্টার্ট করছি আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি স্টার্ট ঠিক আছে। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कवि दत्ता साहब, प्रेसिडेंट दुर्गापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भोला भैया भोला भगत जी सेक्रेटरी दुर्गापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, and all the member of chamber of commerce and industry for giving me opportunity to present Bangla scheme. ठीक है। Very recently West Bengal government announced a lucrative scheme for MSME unit. It is an opportunity for entrepreneur to set up more and more MSME unit in the government of West Bengal and avail various financial and fiscal incentives. Previously, there was a scheme known as WS 2013 scheme that is applicable for MSME, micro and small unit. The scheme was valid till 31st March 2018, and thereafter no scheme was announced. Around 2.5 years, a new scheme announced by the state government, that is Bangla scheme, and this scheme is again applicable for MSME unit. Now I am presenting a small PPT. विश्वरूप स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करो। अलाउ আছে স্যার। Banglasri for micro, small and medium enterprise, that is MSME. Banglasri is applicable for micro, small and medium enterprise in manufacturing sector. একটু ইন্টারাপ্ট করছি, স্ক্রিন শেয়ারিংটা আপনি আরেকবার করে দিন, স্ক্রিন শেয়ারিং হয়নি এখনো। এবারে হ্যাঁ 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 একদম স্ক্রিন শেয়ার আসছে। না আমি স্টার্টিং দা, হ্যাঁ এসে গেছে তো। হ্যাঁ আপনি স্লাইডটা স্টার্ট করুন।
Banglasri for micro, small and medium enterprise. Banglasri is applicable for micro, small and medium enterprise in manufacturing sector. This scheme is not applicable for service sector like cold storage. This is especially for manufacturing sector. In manufacturing sector, all sector is almost covered. Scheme is effective from 1st April 2000 and valid up to प्रोडक्शन है 1 अप्रैल 2000, आपका जो प्रोडक्शन है 31 मार्च 2025 के भीतर आ जाना चाहिए। वहां तक जिनका प्रोडक्शन आता है वो ये स्कीम उसके लिए एप्लीकेबल है। स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो कवर्ड होगा 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होगा और अप टू 31 मार्च 2025 तक कवर्ड है। एंड डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन जो है 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2025 से है। लाइक अर्लियर स्कीम, इस स्कीम में भी सभी सब्सिडी है, लाइक कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, पावर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी वेबर, SGST बेनिफिट। SGST बेनिफिट, ड्यू स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस सभी इस स्कीम में अप्लीकेबल है। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ सब्सिडी, for the calculation of subsidy, for the quantum of the subsidy, entire West Bengal is divided into 5 zones A, B, C, D, E। इस जोन का डिवीजन का पर्पज ये है, जो डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है वहाँ पे क्वांटम बेसी जाए और जो डेवलप है, जैसे ए जोन, ए इज द कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ 24 परगना म्यूनिसिपल, वहाँ सब्सिडी का क्वांटम कम जाए। गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो उनको बेसी प्रमोट करा जाए, इक्वल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल। तो उसके हिसाब से इन्होंने ABCD किया है। ई जोन में सबसे ज्यादा सब्सिडी है, फिर ग्रेजुअली डी में है, कम होता है, फिर सी में, फिर बी में, फिर ए में। ठीक है, तो 5 जोन में वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया। इस स्कीम में ओरिजिनल प्रोजेक्ट एज वेल एज एक्सपेंशन दोनों कवर्ड होता है। ओरिजिनल का मतलब हुआ जो फर्स्ट टाइम आपने यूनिट लाया, फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्शन है, दैट इज द ओरिजिनल प्रोजेक्ट बोलते हैं। उसके बाद आप सेम कंपनी में सेकंड टाइम यदि कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेकंड टाइम कोई इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद जो प्रोडक्शन, दैट इज द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। पुरानी स्कीम जो WS 2013 थी उसमें टेक्सटाइल सेक्टर कवर नहीं था, टेक्सटाइल के लिए एक अलग स्कीम थी, दैट इज WS 2013 स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। लेकिन इस स्कीम में कॉमन स्कीम है, इसमें टेक्सटाइल सेक्टर भी कवर्ड है। अब हम लोग आते हैं देयर लिंकिंग कि पुरानी स्कीम और नई स्कीम में क्या लिंकिंग है। जैसा मैंने कहा कि पुरानी स्कीम 31 मार्च 2018 को क्लोज हो गई थी, उसका मतलब हुआ जिनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन 31 मार्च 2018 के भीतर आता वो पुरानी स्कीम में अप्लीकेबल है। अब उसके बाद स्कीम का एक गैप पीरियड हो गया। ठीक है, तब क्वेश्चन आता है उसके बाद जिसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन आए, जिनका इन्वेस्टमेंट हुआ 1 अप्रैल 2018, उस इन्वेस्टमेंट का या उस कॉमर्शियल ऑपरेशन का क्या होगा, वो किस स्कीम में पार्टिसिपेट करेगी। ये स्कीम का डिजाइन इस तरह से किया हुआ है कि उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट है या जिनका भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन है वो आइदर पुरानी स्कीम में कवर्ड होंगे या नई स्कीम में कवर्ड होंगे। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जिनका कॉमर्शियल ऑपरेशन 1 अप्रैल 2018 के बाद आया और 31 मार्च 2019 के भीतर है, वो पुरानी स्कीम में कवर्ड होगा। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट कभी भी हो सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है 1 अप्रैल 2018 के बाद होना चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट का वो पुरानी स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट का डेट दिया उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओनली क्राइटेरिया है 1 अप्रैल 2018 के बाद कॉमर्शियल प्रोडक्शन होना चाहिए और 31 मार्च 2019 के भीतर कॉमर्शियल ऑपरेशन आ जाना चाहिए। इस स्कीम में भी पावर सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी सभी है, लेकिन GST बेनिफिट इस स्कीम में कवर्ड नहीं। पहले इस स्कीम में वेट CST था, GST आने के बाद पुरानी स्कीम में कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आया कि वेट CST की जगह GST कवर्ड होगा कि नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने WS 2013 जो स्कीम है उसमें GST बेनिफिट को बाहर रखा। अच्छा, इसके लिए एक विंडो है, टाइमलाइन है जमा करने का। वो टाइमलाइन है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ये स्कीम जुलाई महीने में आई, तो जुलाई से 6 महीने के भीतर आपको फर्स्ट टाइम क्लेम जमा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका क्लेम टाइम बार्ड हो जाएगा और स्कीम में आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब अपने आते हैं कट ऑफ डेट की 31 मार्च 2018 में यहाँ स्कीम भीतर है।
वो पूरा WS 2013 में, और जिनका कॉमर्शियल ऑपरेशन 1 अप्रैल 2019 के बाद आया वो बांग्लाश्री न्यू स्कीम में कवर होगा। अच्छा, जैसा ये दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर MSME। MSME का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। MSME किसको बोलते हैं, MSME का क्या क्राइटेरिया, MSME कैसे होगा, MSME का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है। MSME is the act of the MSME Development Act. This is the act of the central government. कोई प्रोजेक्ट आपका MSME है कि नहीं ये डिसाइड करेगा MSME डेवलपमेंट है। तो स्कीम अलग है, स्कीम इज द एक्ट, स्कीम इज द नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड MSME इज द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देयर इज टू डिफरेंट। पहला आपका प्रोजेक्ट MSME है कि नहीं वो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट आपका एलिजिबल है कि नहीं सब्सिडी के लिए वो है। तो MSME, कोई प्रोजेक्ट MSME है कि नहीं, इसके लिए कंपोजिट क्राइटेरिया। पहला है कि आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा टर्नओवर। बिफोर 26 जून 2020 एक ओनली क्राइटेरिया था, दैट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको रेशनल करने के लिए इसको डबल क्राइटेरिया कर दिया, दैट इज द कंपोजिट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर, ठीक है। क्योंकि पुराने में कई बार ऐसा देखा जाता था कि आपका इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़, लेकिन टर्नओवर 500 करोड़ है। एक कंपनी यदि 500 करोड़ का टर्नओवर होता तो वो MSME नहीं हो सकता, ठीक है। तो गवर्नमेंट को रेशनल करने के लिए कंपोजिट क्राइटेरिया क्या है। पहला है माइक्रो एंटरप्राइज। माइक्रो का मतलब हुआ कि आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़ होना चाहिए, 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक हो सकता है, और सिमिलरली टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइज में टर्नओवर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 10 करोड़ होगा और टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है। मीडियम एंटरप्राइज का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 50 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 250 करोड़ है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, पहला इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा है टर्नओवर। अब प्लांट एंड मशीनरी किसको बोलते हैं, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ द MSME, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब हुआ जो आपका इनकम टैक्स में जिसको प्लांट एंड मशीनरी करते हैं, सेम मीनिंग यहाँ पे वही प्लांट एंड मशीनरी होगा, ठीक है। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी में इलेक्ट्रिकल्स इंक्लूड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इज द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि प्लांट एंड मशीनरी में लोग वैल्यूएशन क्या पकड़े, ओरिजिनल कॉस्ट या डेप्रिसिएटेड वैल्यू। इसमें जो वैल्यूएशन लेंगे MSME के लिए, दैट इज द डेप्रिसिएटेड वैल्यू, दैट इज द WDV वैल्यू, ठीक है। और MSME जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसको एग्जैक्ट वर्ड बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। और इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू आपके इनकम, एक इनका MOU MSME मिनिस्ट्री का और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक MOU किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का आपका वो सिस्टम वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगा कि आपका प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट है। तो प्लांट एंड मशीनरी का मतलब हुआ कि आपका WDV है, ठीक है, और एज पर द इनकम टैक्स। सिमिलरली टर्नओवर भी का मतलब क्या होता है, टर्नओवर एज डिफाइंड इन द GST रिटर्न। आपका GST रिटर्न में जो टर्नओवर बोलते हैं, टैक्सेबल टर्नओवर होता है, दैट इज द टर्नओवर। वो भी आपका टर्नओवर जब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो GST रिटर्न से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। हाँ, टर्नओवर में यहाँ पे एक्सपोर्ट टर्नओवर इंक्लूड नहीं है। तो ये हुआ हमारा MSME का डिफिनेशन। इसमें सब चीज अप टू है। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, आपका ऐसा हो सकता है केस कि आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपया है, लेकिन आपका पहला क्राइटेरिया 1 करोड़ है और यहाँ पे टर्नओवर 250 करोड़ है, ठीक है। तो ये आपका मीडियम इंटरप्राइज हो जाएगा। इसमें तीनों चीजें अप टू है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 50 करोड़ है और टर्नओवर अभी 5 करोड़ है, ये भी अगेन मीडियम इंटरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बांग्लाश्री का मैंने हाईलाइट बताया, फिर MSME का डिफिनेशन बताया। अब बांग्लाश्री इंसेंटिव लेने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ इम्प्लीकेशंस है, जिसमें जैसे फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट क्या है, इंटरप्राइज क्या है, ओरिजिनल किसको बोलते हैं, एक्सपेंशन किसको बोलते हैं, ये 5-7 जोन क्या है, ये 5-7 टर्मिनोलॉजी है। फिर उसके बाद सब्सिडी क्या आती है, फिर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर क्लेम कैसे जमा करना, ये 4-5 बेसिक ब्रॉड हेड में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला वर्ड है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको जो भी सब्सिडी मिलेगी वो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अगेन प्लांट एंड मशीनरी का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। MSME के लिए प्लांट एंड मशीनरी का मीनिंग अलग है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिव इक्विपमेंट। इसमें कुछ आइटम एक्सक्लूडेड होते हैं, जैसे जिग है, डाइज है, मोल्ड है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है, कॉस्ट ऑफ पावर सेट है, DG सेट है, कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, स्टोरेज टैंक है, गैस पावर प्लांट है। ये सब सभी आइटम आपके प्लांट एंड मशीनरी से एक्सक्लूड हो जाएंगे।
और नेट जो फिगर आएगा डेट इज द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और उसी के ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी, उसी के ऊपर फिनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। अगर यहाँ पे अपने वैल्यूएशन क्या लेंगे, यहाँ पे वैल्यूएशन आता है ओरिजिनल कॉस्ट, नॉट द डेप्रिसिएटेड वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट में आपका जीएसटी वगैरह इंक्लूड हो जाता है, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्लूड हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे इंटरप्राइज। यहाँ पे हर स्कीम में लिखा न्यू इंटरप्राइज है, एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज है या एक्सपेंशन, ठीक है। न्यू इंटरप्राइज का मतलब अंडर बांग्लाश्री MSME in manufacturing sector which has started production on or after 1st April 2019, ये दिस इज द बेंचमार्क। इसके बाद जिनका प्रोडक्शन आएगा डेट इज द न्यू इंटरप्राइज, इसके पहले जिनका प्रोडक्शन आ गया डेट इज द एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज। Existing enterprise MSME in manufacturing sector which has started production on or before 1st April 2019। अच्छा, एक कंपनी में सपोज कई यूनिट है इन इंडिया, इन वेस्ट बंगाल और आउटसाइड वेस्ट बंगाल भी है, तो उसमें हम MSME कैसे निकालेंगे? उसमें सभी यूनिट का प्लांट एंड मशीनरी को क्लब करेंगे, सभी यूनिट का टर्नओवर को क्लब करेंगे, उसके बाद जो कंसोलिडेटेड वैल्यू आएगा वो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि यूनिट MSME है कि नहीं है। अभी जो MSME यूनिट का जो डेफिनेशन है, जो MSME यूनिट का डिटर्मिनेशन है, एक कंपनी में जितनी भी यूनिट हो, जितना भी टर्नओवर हो, सब क्लब हो जाएगा। क्लब होने के बाद जो नेट वैल्यू आएगा, टोटल वैल्यू आएगा, कंसोलिडेटेड वैल्यू आएगा, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, आप यदि एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है? एक्सपेंशन का मतलब आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया और आपका प्रोडक्शन बढ़ा, अप्रूव कैपेसिटी है उसी के भीतर आपने इन्वेस्टमेंट किया, कैपेसिटी बढ़ गई। ये एक आप नए आइटम का विथ नई कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हैं। एक ये नए लोकेशन पे प्रोजेक्ट डालते हैं, यूनिट 2 डालते हैं। ये तीनों चारों तरीके से जो भी आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डेट इज द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, और आपको जो बेनिफिट मिलेगा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के हिसाब से मिलेगा, नॉट द न्यू इंटरप्राइज के हिसाब से। न्यू इंटरप्राइज का बेनिफिट अलग है, एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज में एक्सपेंशन करेंगे उसका बेनिफिट अलग है। अब इसमें आता है कि वो एलिजिबल इंटरप्राइज क्या होगा, एप्लीकेंट कौन हो सकता है। एलिजिबल इंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर में प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है, या कोऑपरेटिव सेक्टर है, या ज्वाइंट सेक्टर कंपनी है, कंपनीज ओन्ड एंड मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट है, या इंडस्ट्रियल यूनिट मैनेज बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ऑलमोस्ट ऑल द एंटिटीज कवर्ड as a eligible enterprise and eligible for the incentive subject to other criteria are fulfilled। बांग्लाश्री में फर्स्ट और फॉरमोस्ट क्राइटेरिया क्या है, आपका कमर्शियल प्रोडक्शन 1 अप्रैल 2019 के बाद आना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट जो प्लांट एंड मशीनरी में है वो 1 अप्रैल 2018 के बाद आना चाहिए। उसके पहले कोई इन्वेस्टमेंट आता तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी। ऐसा भी हो सकता है आपने लैंड बिल्डिंग ये सब पहले से लेकर रखा, वो डेट इज 1 अप्रैल 2018 के पहले, तो उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। आपका जो प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 अप्रैल 2018 के बाद होना चाहिए। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्कीम में अप्रूव्ड प्रोजेक्ट का बहुत रेलिवेंसी है। यदि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड नहीं है तो आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब अप्रूव कैसे होता है? अप्रूव्ड प्रोजेक्ट का मतलब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव्ड होना चाहिए। आप ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं वो अप्रूव्ड होना चाहिए। वो यदि अप्रूव्ड नहीं है तो आपका सब्सिडी के लिए एलिजिबल। अब अप्रूवल के लिए अथॉरिटी कौन है? पहला अथॉरिटी है डिपार्टमेंट ऑफ MSME टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पे DIC है, DIC इज द नोडल ऑफिस, आप उनसे भी अप्रूव करा सकते हैं। यह MSME DI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका फूड प्रोसेसिंग में है तो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से करा सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव बैंक है, शेड्यूल बैंक, जिस बैंक ने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग की, ठीक है। यदि वो कॉमर्शियल बैंक में आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है, वो जो फंडिंग कर रहा है आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करता, तो वो डेट विल बी कंसिडर्ड एज एन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। यदि वो बैंक फंडिंग नहीं करता तब उनका अप्रूवल नहीं चलेगा। यदि वो फंडिंग करता, प्रोजेक्ट फंडिंग करता है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अप्रूवल उनसे ले सकते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। अप्रूवल का टाइमिंग क्या रहेगा? प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होने के पहले, प्लांट एंड मशीनरी का ऑर्डर प्लेस करने के पहले प्रोजेक्ट का अप्रूवल लगाना चाहिए, ठीक है।
यदि आपका अप्रूवल नहीं होता है या आप अप्रूवल कमर्शियल प्रोडक्शन लाने के बाद अप्रूवल कराते हैं तो सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं, इनएलिजिबल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, सपोज आपने अपने ओन सोर्स से प्रोजेक्ट लगा लिया, आपने कोई बैंक से फंडिंग नहीं ली या कोई एनबीएफसी कंपनी है उससे ले लिया या अनसिक्योर्ड लोन से फंडिंग करा लिया, तब उस केस में प्रोजेक्ट को कैसे बोलेंगे? एनबीएफसी कंपनी से फंडिंग होती है तो उसमें अप्रूवल कर, उसमें एकदम सिंपल कंसेप्ट है, आपका प्रोजेक्ट लगने के पहले, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के पहले ये जो 4-5 नोडल ऑफिस लिस्टेड है आप उनसे अप्रूवल करा लीजिए। ठीक है, यदि अप्रूवल नहीं होता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव नहीं है, तो आपका पहले ही यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने पहला बताया फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेलिवेंस है कि आपको सब्सिडी कितना मिलेगा, वो डिसाइड करता है फिक्स कैपिटल। दूसरा इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का रेलिवेंसी ये है कि आपका न्यू एंड एक्सपेंशन है, उसके हिसाब से सब्सिडी डिसाइड होता है। तीसरा एलिजिबल इंटरप्राइज क्या करते हैं, जो एप्लीकेंट है जो सब्सिडी लेगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी हो सकता है, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन इज कवर्ड। प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन हो वो ऑलमोस्ट ऑल कवर्ड है। फिर तीसरा, चौथा हुआ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं? अब हम आते हैं जोन। जोन ए बी सी डी, इंटायर वेस्ट बंगाल को 5 जोन में डिवाइड किया हुआ। ये जो जोन है ये विथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जैसे कोलकाता जोन में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ 24 परगना का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल एरिया जाएगा, नॉट द इंटायर डिस्ट्रिक्ट। सिमिलरली साउथ 24 परगना का भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल एरिया जाएगा, एंड हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल एरिया। ठीक है, जोन बी में भी सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉट द पंचायत एरिया। पश्चिम मेदिनीपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत एरिया है या ग्राम पंचायत एरिया वो जोन सी में आएगा। पूर्व मेदिनीपुर का भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल एरिया है, इसके अलावा जो ग्राम पंचायत है वो जोन सी में आएगा। अपने पूर्व बर्धवान है, इसका भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोन बी में आएगा, इसके अलावा ग्राम पंचायत जो है आपका जोन सी में आएगा। ये जो है नॉन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जोन सी में पूर्व बर्धवान, जोन सी में पश्चिम बर्धवान जोन सी में आएगा। ठीक है, तो दुर्गापुर हमारे हिसाब से जोन सी में आना चाहिए। ठीक है, फिर जोन डी है, एक नया जोन ऐड हुआ, डेट इज द कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। कूच बिहार जो नया डिस्ट्रिक्ट बना उसको जोन ए में किया, यहाँ मैक्सिमम सब्सिडी है। जोन का जो रेलिवेंसी है वो सब्सिडी क्वांटम को डिसाइड करने के लिए है। इंटायर जोन को 5 जोन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कोलकाता में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल एरिया जाता है ओनली। ठीक है, जोन सी के कुछ म्युनिसिपल एरिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक डिस्ट्रिक्ट डाउनग्रेड होकर जोन बी में शिफ्ट हो जाता है। जोन डी, जोन ई में इंटायर डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है, वेदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल एरिया इंक्लूडिंग ग्राम पंचायत। अब अपने सब्सिडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड पहला सब्सिडी है कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी जो मिलेगा वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज को ले, मीडियम इंटरप्राइज पे कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है। ठीक है, आपका यदि प्रोजेक्ट जोन सी में हो तो 25% माइक्रो यूनिट, जोन सी 25% ऑफ एफसीआई। एफसीआई मतलब फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जोन डी हो तो 40% ऑफ एफसीआई, एंड जोन ई हो तो 60% ऑफ एफसीआई। माइक्रो इंटरप्राइज में फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल सब्सिडी का कोई अपर लिमिट नहीं है। माइक्रो का मतलब वो आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़। स्मॉल इंटरप्राइज जोन सी हो तो 15% एंड अप टू 50 लाख, अपर के 50 लाख का है। स्मॉल इंटरप्राइज जोन डी हो तो 30% है, अपर के 50 लाख का है। स्मॉल इंटरप्राइज जोन ई हो तो 40% है, अपर के 75 लाख का। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और इन्वेस्टमेंट आपके 1 अप्रैल 2018 के बाद होना चाहिए। ठीक है, जोन ए और बी में कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है। ठीक है, हाँ, जोन ए बी में कैपिटल सब्सिडी नहीं है। कैपिटल सब्सिडी जो आपका जोन सी डी ई 3 जोन में कैपिटल सब्सिडी है। ठीक है, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है जोन ए बी के लिए। यदि इंटरप्राइज ओन्ड बाय द वोमेन इंटरप्राइज हो या एससी एसटी हो या माइनॉरिटी हो और माइक्रो हो यूनिट या स्मॉल हो, तब कैपिटल सब्सिडी हो सकता है। मीडियम इंटरप्राइज के लिए कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है। ठीक है, यदि इंटरप्राइज माइक्रो ओन्ड बाय द वोमेन इंटरप्राइज हो, एससी एसटी हो या माइनॉरिटी हो, तब एडिशनल 20% सब्सिडी है। 20% सब्सिडी का मतलब हुआ कैपिटल सब्सिडी ऑन द सब्सिडी। इसका मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। देखिए ये एडिशनल कैपिटल सब्सिडी क्या मिलेगी। लोकेशन जोन है, स्टेटस आपका स्मॉल यूनिट है,
और फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2 करोड़। तो नॉर्मल जो सब्सिडी मिलेगी 15% ऑन 2 करोड़ 30 लाख, एडिशनल सब्सिडी जो 20% है वो 30 लाख पे है, 20% ऑन 30 लाख दैट इज 6 लाख। तो टोटल एलिजिबल सब्सिडी इंक्लूडिंग एडिशनल सब्सिडी 36 लाख है। ये एडिशनल सब्सिडी अगेन इंटरप्राइज ओन्ड बाय द वुमेन इंटरप्राइज हो या SC SC हो या ST हो या माइनॉरिटी हो। ठीक है, तो कैपिटल सब्सिडी में मेन हाईलाइट है कि प्लांट एंड मशीनरी पे कैपिटल सब्सिडी है, एडिशनल 20% कैपिटल सब्सिडी है, जोन A B में कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है। C के लिए अपर लिमिट 50 लाख है, D के लिए अपर लिमिट 50 लाख है, E में 75 लाख है। ठीक है, और मीडियम इंटरप्राइज में कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सब्सिडी है इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टर्म लोन। टर्म लोन का मीनिंग क्या हुआ, हम प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंस लेते हैं टर्म लोन, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, जो टोटल जो टर्म लोन लेंगे इंटायर टर्म लोन इज एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। ठीक है, इंटरेस्ट सब्सिडी का जो पीरियड रहेगा 5 साल तक मिलेगा आपको। आप सपोज लोन 7 ईयर्स के लिए लेते हैं लेकिन सब्सिडी एलिजिबल होगा अप टू 5 ईयर्स। आप लोन 7 ईयर्स के ले सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो पीरियड मैक्सिमम परमिसेबल है डेट इज 5 ईयर्स। माइक्रो स्मॉल हो, जोन A B है तो 55% है। हम जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, सपोज 100 रुपया पेमेंट किया तो 55 रुपया हमको गवर्नमेंट से रिफंड मिल सकता है। और जोन C D E हो तो 70% है, ये काफी लुक्रेटिव है यहाँ पे। और माइक्रो स्मॉल में कोई अपर लिमिट नहीं है, पर ईयर के हिसाब से कोई फिक्स लिमिट नहीं है, मतलब इतना ही तक आपको मिलेगा। मीडियम इंटरप्राइज में जोन A में कोई इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं है, B C D E हो तो 25% है। यहाँ पे यूनिफॉर्म है B C D E के लिए। मीडियम इंटरप्राइज में एक अपर लिमिट है डेट इज 1 करोड़ 75 लाख, ये पर ईयर के लिए है, लेकिन ये लिमिट इतना लंबा, इतना अच्छा है, इतना सफिशिएंट है कि आपका मोटा मोटी कोई भी टर्म लोन हो तो एक्सपेक्टेड 5 ईयर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अक्टूबर में डिसबर्समेंट लिया तो अक्टूबर टू सितंबर एक साल होगा। इसमें फिनेंशियल ईयर का सिस्टम नहीं है। अब आते पावर सब्सिडी, जो अपने एनर्जी चार्ज पेमेंट करते हैं, ठीक है, उस पे भी गवर्नमेंट से रिइंबर्स होता है अंडर द बांग्लादेश। ठीक है, इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिए जो रेट है यूनिफॉर्म है, खाली जोन वाइज रेट चेंज होता है। AB के लिए ₹1 पर यूनिट है, CDE यह है ₹1.50 पर यूनिट। इसमें एक अपर लिमिट है माइक्रो स्मॉल मीडियम के हिसाब से। माइक्रो में ₹10 लाख पर एनम है, इसमें स्मॉल में 20 लाख पर एनम है, मीडियम में 30 लाख पर एनम है। पावर सब्सिडी अगेन स्टार्ट कब से होगा, आपका जिस दिन कॉमर्शियल ऑपरेशन आ गया, आपका जिस दिन प्लांट चालू हो गया। प्लांट चालू को हम लोग कॉमर्शियल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, जिस दिन आप पहला सेल बिल फाड़ते हैं दैट इज द फर्स्ट डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन, तो वहां से आपको 5 साल मिलेगा। अच्छा, अभी तो एनर्जी पे सब्सिडी मिल रहा था, अब आता है एनर्जी पे जो गवर्नमेंट ड्यूटी लगता है एनर्जी चार्ज पे, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। सपोज आपका 100 रुपया एनर्जी कंज्यूम होता है, 100 रुपया एनर्जी चार्ज है, तो आपका इफेक्टिव बिल होगा 115 रुपया, 15%। तो यहाँ ड्यूटी कंपोनेंट बहुत हाई है। इसका भी हम लोग को 5 साल का वेवर या रिफंड मिलता है। इसमें माइक्रो स्मॉल हो और जोन A B हो तो 50% फॉर 5 ईयर्स है, CDE हो 75% फॉर 5 ईयर्स है। इसमें रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब 100% नहीं है, 50% 75%। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, यदि आपका वुमेन इंटरप्राइज हो या SC ST हो या माइनॉरिटी हो तब 100% फॉर 5 ईयर्स है। लेकिन इसमें भी एक केप है, 10 लाख मैक्सिमम केप है पर एनम। ठीक है, तो ये जो था स्मॉल और मीडियम के लिए है, स्मॉल और माइक्रो के लिए, मीडियम के लिए अलग है। मीडियम के लिए जोन B एंड C हो तो 100% फॉर 5 ईयर्स है। अच्छा, मीडियम में जोन A में कोई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बेनिफिट नहीं है, B से स्टार्ट होता। माइक्रो स्मॉल में A से स्टार्ट है, लेकिन मीडियम में B से स्टार्ट होता है। जोन B एंड C हो 100% फॉर 5 ईयर्स अप टू 25 लाख पर ईयर। यहाँ मैक्सिमम केप है 25 लाख का। जोन D एंड E जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक लंबा बेनिफिट दिया है जो दैट इज फॉर 10 ईयर्स। फर्स्ट 5 ईयर्स 100% है,
नेक्स्ट 5 ईयर 75% है, ठीक है, 75% फ्रॉम 6 to 10 ईयर, और यहाँ पे अपर के पर 50 लाख पर ईयर। और ये बेनिफिट जो स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, वहां से बेनिफिट स्टार्ट होगा, 5 साल तक कंटिन्यू रहेगा। तो मीडियम इंटरप्राइज और जोन डी और ई के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो बेनिफिट है दैट इज द बोनांजा बेनिफिट, 10 ईयर्स के लिए बेनिफिट है। तो हम लोग ने कहा अभी तक एक्सप्लेन किया, कैपिटल सब्सिडी हो गया, इंटरेस्ट सब्सिडी है, पावर सब्सिडी है, और इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट है, ड्यूटी बेनिफिट जो है। एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट दिया इन्होंने SGST का, ठीक है। SGST का जो बेनिफिट है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिए सेम है, खाली जोन वाइज रेट डिफर करता है, ठीक है। SGST को किसको बोलते हैं? आप जो नेट SGST पेमेंट करेंगे, इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट पेमेंट होगा, ठीक है। सपोज आपका SGST लायबिलिटी 100 रुपया है और आपने पेमेंट 50 रुपया कर दिया, तो नेट पेमेंट आपका 50 रुपया गवर्नमेंट के अकाउंट में जो आपने 50 पेमेंट किया उस पर रिइंबर्समेंट मिलेगा, वो आपको रिफंड मिलेगा। उसका परसेंटेज क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम रेट तीनों के लिए रेट यूनिफॉर्म है। जोन बी एंड सी इसमें 30% ऑफ नेट SGST है एंड मैक्सिमम 8 ईयर्स है, और जोन डी एंड ई हो तो 50% है रिफंड ऑफ नेट SGST और इसमें मैक्सिमम पीरियड 8 ईयर्स है, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट जो स्टार्ट होगा ये अगेन फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन है, लेकिन इसमें ये 8 साल तक मिलेगा। जोन बी सी के लिए 30% है, जोन डी एंड ई के लिए 50% है। लेकिन ये 8 साल में जो एक्यूमुलेटेड बेनिफिट होगा, जो टोटल बेनिफिट होगा, उसमें एक कैप है। वो कैप यह है कि आपका अप टू 75% इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। तो आपका 8 साल ये कैप जो आगे कंप्लीट होगा वहीं तक बेनिफिट मिलेगा। ऐसा भी हुआ सपोज आपका कैप 4 साल में कंप्लीट हो गया तो आपका बेनिफिट वहां स्टॉप हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि आपका कैप कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन पीरियड 8 साल कंप्लीट हो गया तो बेनिफिट यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन है, एक है मैक्सिमम कैप, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स है। जो आगे रीच करेगा वहीं पे बेनिफिट स्टॉप हो जाएगा। तो ये SGST का बेनिफिट अच्छा बेनिफिट है, बहुत लुक्रेटिव बेनिफिट है। अब ये छोटा छोटा स्मॉल बेनिफिट है, जैसे एनर्जी इफिशिएंसी इक्विपमेंट लगाते हैं तो उसमें अप टू 2 लाख है। स्टाम्प ड्यूटी का कुछ रजिस्ट्रेशन है, 100% है, 75% है, 50% है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन कुछ करते हैं तो उसके लिए 2 लाख रुपया है, क्वालिटी कंप्लायंस के लिए 5 लाख रुपया है, और पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 5 लाख रुपया है, ठीक है। ये स्मॉल पेटी बेनिफिट्स है। एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है जिसको बोलते हैं वर्कफोर्स वेलफेयर असिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो हम अपने यूनिट में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उनका जो PF कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर्स का PF और ESI जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी आपको सब्सिडी में रिइंबर्समेंट हो जाएगा। नॉट द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और वो रिइंबर्समेंट का जो ईयर्स है 5 साल है जोन बी के लिए, जोन सी के लिए 7 साल है, जोन डी के लिए 9 ईयर्स है। क्वांटम ऑफ रिइंबर्समेंट इट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल, ठीक है। क्वांटम ऑफ रिइंबर्समेंट होगा 100% फर्स्ट ईयर में है, 75% इन रिमेनिंग ईयर्स में। मतलब हम लोग जो PF और ESI कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसका फर्स्ट ईयर में 100% तक रिइंबर्समेंट होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का 100%, और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड 75% होगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, वो कंडीशन आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। वो कंडीशन यह है कि अपने जो एम्प्लॉयमेंट देंगे, अपने जो एम्प्लॉय रिक्रूट करेंगे या जो वर्कर आएगा वो गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। वो कम से कम मिनिमम 50% होना चाहिए। सपोज हम लोग ने फैक्ट्री में 100 वर्कर रखा तो मिनिमम 50 वर्कर जो है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप जब रिक्रूट करेंगे तो उसका वो आई प्रूफ और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन का जो एविडेंस है वो आपको रखना पड़ेगा। जब हम क्लेम जमा करेंगे तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं हमारी इस एम्प्लॉय का ये एम्प्लॉयमेंट बैंक में रजिस्टर्ड है। अथवा ये बेनिफिट बहुत लुक्रेटिव है, लेकिन बस इसी में एक कंडीशन, वो कंडीशन को कंप्लाई करने से ही बेनिफिट मिलेगा। अभी तक हम लोग ने जो बेनिफिट कहा वो सब ओरिजिनल प्रोजेक्ट के हिसाब से जिनका कमर्शियल कॉर्पोरेशन फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन का सब्सिडी क्या होगा, क्या क्वांटम होगा। एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि आप कोई एडिशनल प्रोडक्शन ला रहे हैं सेम आइटम का,
एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, या कोई नया लोकेशन पे कोई नया यूनिट डाल रहे हैं, यूनिट 2 यूनिट 3, ये सभी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए 2 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन किसको बोलते हैं? 2 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। पहला यह है कि अपने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, वो एटलीस्ट 25% होना चाहिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का जो कट ऑफ डेट है वो 31 मार्च 2019 को। सपोज आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2019 को 5 करोड़ रुपया ओरिजिनल वैल्यू पे, तो आपको मिनिमम जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी वो 1.25 करोड़ रुपीज होना चाहिए, तभी वो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट होगा, अदरवाइज वो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट नहीं होगा। और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के कारण एटलीस्ट 15% एम्प्लॉयमेंट एडिशनल जनरेट होना चाहिए। सपोज बिफोर एक्सपेंशन हमारा एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ 100 है, तो हमको एटलीस्ट 15 एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन के कारण एडिशनल जनरेट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी प्रोजेक्ट हमारा एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट एक्सपेंशन नहीं होगा। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में सब्सिडी क्या है? कैपिटल सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट क्या क्या चीज के लिए एलिजिबल नहीं होगा? पावर सब्सिडी नहीं है एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पे, वेवर और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रिफंड नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, SGST बेनिफिट नहीं है। तो मेन जो बेनिफिट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पे 2 ही लगेगा, कैपिटल सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी भी प्रोजेक्ट आपका माइक्रो स्मॉल होना चाहिए, मीडियम नहीं होना चाहिए, और जोन CDE में होना चाहिए, तब कैपिटल सब्सिडी मिलेगा, अदरवाइज कैपिटल सब्सिडी नहीं मिलेगा। वोमेन एंटरप्राइज तो एडिशनल बेनिफिट है, जैसे कैपिटल सब्सिडी जोन A B में नहीं है, वोमेन एंटरप्राइज होने से मिल जाएगा। एडिशनल 20% है, सब्सिडी पे 20% है। 100% ऑफ वेवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए किसी भी जोन में। SGST का हमने कहा था कि यदि सपोज ऐसा भी हो सकता है एक कंपनी में आप ट्रेडिंग भी कर रहे फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग लाए, ठीक है, तो आपको SGST का जो बेनिफिट मिलेगा खाली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे मिलेगा जो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। ट्रेडिंग पे जो SGST लायबिलिटी आता है उस पर कोई आपको बेनिफिट नहीं है। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरह से रखना पड़ेगा, आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए अलग होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के अलग होना चाहिए। आप प्रूव कर सकते हैं कि SGST हमने मैन्युफैक्चरिंग पे इतना दिया, मैन्युफैक्चरिंग पे जो SGST बेनिफिट SGST पेमेंट होगा उसी पे आपको 30% या 50% जो स्लैब है उसके हिसाब से मिलेगा। क्योंकि SGST बेनिफिट लेने के लिए हमको स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वेट डिपार्टमेंट से आपको एक पेमेंट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि इस यूनिट ने, जो यूनिट रजिस्टर्ड है उसने इतना SGST का पेमेंट किया, उस पेमेंट के बेसिस पे DIC आपको SGST का रिइंबर्समेंट करेगा। और आप जब सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो आप प्रूव कर सकते हैं कि हमको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो हमारा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है सब्सिडी में, उसमें हमने SGST इतना पेमेंट किया। जोन ए जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसमें कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है, इंटरेस्ट सब्सिडी मीडियम इंटरप्राइज के लिए नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वेवर नहीं है मीडियम इंटरप्राइज के लिए, और SGST बेनिफिट माइक्रो स्मॉल किसी के लिए नहीं है। जोन P में खाली कैपिटल सब्सिडी नहीं है, बाकी सब्सिडी इन लाइन विद द जोन CDE है। ये एक कंपैरिजन है कि माइक्रो स्मॉल में क्या मिलता है और मीडियम में क्या है, दोनों में क्या। माइक्रो स्मॉल का एक सेट हो गया, मीडियम का एक सेट हो गया, ठीक है। माइक्रो स्मॉल हो तो कैपिटल सब्सिडी है, मीडियम में कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल में इंटरेस्ट सब्सिडी का कोई कैप नहीं है, मीडियम इंटरप्राइज में कैप है। माइक्रो स्मॉल यदि इंटरप्राइज ओन्ड बाय द वुमेन इंटरप्राइज हो या SC/ST हो या माइनॉरिटी हो तो 100% आपका वो है, वो कैपिटल सब्सिडी यहाँ पे। और मीडियम में कोई भी ओनरशिप हो, वेदर ओन्ड बाय द वुमेन इंटरप्राइज हो या SC/ST हो, यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बेनिफिट सभी में है, मीडियम में जोन A में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बेनिफिट नहीं है। और ये ठीक है, तो एक कंपेरिजन करके दिया है कि माइक्रो स्मॉल वर्सेस मीडियम क्या होता है, ठीक है। हम लोग ने पहले आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा वो बताया था, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट ओरिजिनल है, एक्सपेंशन है, एलिजिबल इंटरप्राइज है, आपका इन्वेस्टमेंट कब से होगा वो सब कवर किया। आपको बेनिफिट्स क्या है, कैपिटल सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, पावर सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी का वेवर है, SGST का बेनिफिट है।
ये मेजर सब्सिडी है, बाद बाकी जो है स्मॉल सब्सिडी। ठीक है, अब आता है कि सब्सिडी को लेने के लिए हमको क्या करना, हमारे पास क्या क्या कंप्लायंस होना चाहिए, क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। यूनिट मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, सर्विस सेक्टर पे कोई सब्सिडी नहीं है। यूनिट निगेटिव लिस्ट में नहीं आना चाहिए। निगेटिव लिस्ट में दो इंडस्ट्री है, एक तो स्पंज आयरन फैक्ट्री है और दूसरा रेड ब्रिक्स है। फायर क्ले या फायर ब्रिक्स नहीं है, रेड ब्रिक्स इज निगेटिव लिस्ट। आपका कमर्शियल प्रोडक्शन 25 के भीतर आ जाने चाहिए, उसके बाद आता तो ये स्कीम अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आपको जो पहला क्लेम जमा करेंगे, कंपोजिट जो क्लेम जमा करेंगे, आपके कमर्शियल ऑपरेशन से 12 महीने के भीतर, 1 ईयर के भीतर आपको जमा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये टाइम बाउंड हो जाएगा। लैंड का कंपनी के नाम पे म्यूटेशन होना चाहिए और लैंड का इंडस्ट्रियली कन्वर्टेड होना चाहिए। यदि रेंटेड प्रॉपर्टी है तो लैंडलॉर्ड के नाम से म्यूटेशन होना चाहिए और इंडस्ट्रियली कन्वर्टेड होना चाहिए। यदि आपका लैंड कन्वर्टेड नहीं है तो सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आपको लाइसेंसेस सारे रखने पड़ेंगे, जैसे कंसेंट टू ऑपरेट है, फैक्ट्री लाइसेंस है, फायर लाइसेंस है, ये जितने भी लाइसेंसेस है, ग्राउंड वाटर का परमिशन है, वो लाइसेंसेस सब अप टू द मार्क होना चाहिए। सब्सिडी क्लेम करने के लिए आपके पास प्लांट एंड मशीनरी की लिस्ट होनी चाहिए, उसकी कॉपीज होना चाहिए, डिलीवरी चलान होना चाहिए, मनी रिसिप्ट होना चाहिए। आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसका मनी रिसिप्ट होना चाहिए, पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए। सेकेंड हैंड मशीन पे कोई सब्सिडी नहीं है। ठीक है, कोई प्लांट यदि मशीन सेकेंड टाइम यूज होता है, वेदर इम्पोर्टेड हो या डोमेस्टिक हो, सेकेंड हैंड मशीन इज टोटली एक्सक्लूडेड। सर्विस सेक्टर पे कोई कवर नहीं है, सब्सिडी नहीं है। पावर कनेक्शन लेंगे, जो इलेक्ट्रिक मीटर रहेगा, जो एनर्जी मीटर है, वो कंपनी के नाम पे होना चाहिए, एप्लीकेंट के नाम पे होना चाहिए। ठीक है, SGST हमको ऑलवेज प्रूव करना पड़ेगा कि SGST हमारे इस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के कारण आया है। तो ये मोटा मोटी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट है कि ये रखना चाहिए आप। ठीक है, एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे भी एक बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, दैट स्कीम इज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें खाली एक ही टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आप जो फूड प्रोसेसिंग में प्रोजेक्ट जो डालेंगे वो मेगा फूड पार्क होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में मेगा फूड पार्क एक ही है, दैट इज द जंगीपुर फूड पार्क। जंगीपुर फूड पार्क में कोई प्रोजेक्ट डालते हैं तो उसमें आपको अप टू 5 करोड़ सब्सिडी मिल सकती है इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, एंड दिस स्कीम इज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, यदि आपका प्रोजेक्ट SC/ST हो, तब उसमें आप किसी भी लोकेशन में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में डालते हैं तो आपको 5 करोड़ तक का मैक्सिमम कैप मिल सकता है। इस स्कीम में गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्पज है, इस स्कीम का टाइटल है क्रिएशन एंड एक्सपेंशन अंडर प्रधानमंत्री किसान संपद योजना। ठीक है, स्कीम का टाइटल है कि प्रोसेसिंग लेवल को बढ़ाना और एग्री वेस्टेज को रिड्यूस करना। इसमें जो नोडल ऑफिस है जो स्पॉन्सर्ड कर रही है वो दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सेक्टर एलिजिबल है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, मिल्क प्रोसेसिंग है, मीट प्रोसेसिंग है, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड हो सकता है। रेडी टू ईट में जैसे पोटैटो चिप्स, दैट इज द रेडी टू ईट। ठीक है, ग्रेन्स है, राइस मिल है, ऑयल मिल है, मॉडर्न राइस मिल है, ये सभी सेक्टर कवर्ड है इसमें। ठीक है, सेक्टर जो इन एलिजिबल है वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होगा या एडिटेड वाटर है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स इज द एडिटेड वाटर, वो एक्सक्लूडेड है। फार्मिंग एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड है, पोल्ट्री फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, मतलब आपका प्रोसेसिंग होना चाहिए, फूड का प्रोसेसिंग होना चाहिए, फार्मिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो 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 अपने फूड को प्रोसेस करते हैं दैट सेक्टर इज कवर्ड, और उसका फार्मिंग करते हैं वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है। ये स्कीम अभी 31 नवंबर 2020 तक वैलिड है, एंड अगेन इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, क्वांटम ऑफ सब्सिडी जनरल एरिया के लिए 35% है और नॉर्थ ईस्ट के लिए 55, एंड मैक्सिमम जो ग्रांट है जनरल एरिया इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, दैट इज द 5 करोड़। इस स्कीम का ब्यूटी क्या है, आपको 50% ग्रांट, यदि आपका मैक्सिमम के 5 करोड़ है तो आपको 2.5 करोड़ आपको प्रोजेक्ट जब लग रहा है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, उसी समय मिल जाता है, और बैलेंस 50% आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए उसके बाद क्लेम कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में मिनिमम 20% होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट टोटल 10% होना चाहिए। बैंक से मिनिमम 20% टर्म लोन होना चाहिए। ठीक है, दिट इज द मस्ट। ठीक है, आप उससे बेसी लोन ले सकते हैं, 20% से कम नहीं ले सकते। मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 करोड़ होना चाहिए जनरल एरिया के लिए। ठीक है,
प्रोजेक्ट आपका मेगा फूड पार्क में होना चाहिए। जिस स्टेट में मेगा फूड पार्क नहीं है या एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर नहीं है वो कहीं पे भी लगा सकता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में एक जंगीपुर फूड पार्क है तो इसलिए आप यहाँ पे और किसी लोकेशन में नहीं लगा सकते। अभी कुछ दिन तो पहले तक सुधारस फूड पार्क, दैट इज नॉट द मेगा फूड पार्क, ओनली फूड पार्क, वो कवर्ड था। ठीक है, अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने मेगा फूड पार्क को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। इंटरप्राइज यदि ओन्ड बाय SC/ST है तो उसमें लोकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो सकता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है कंप्लीशन दैट इज 18 मंथ्स है। 18 महीने में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके डिले होता है तो आपको मिनिस्ट्री से एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम सम अप ऐसे कर सकते हैं कि ये फूड का कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट का 5 करोड़ तक का ग्रांट है। अच्छा, इसमें एलिजिबल जो कॉस्ट है लैंड छोड़ के बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रिफिकेशन तीनों कवर्ड होता है। स्टेट गवर्नमेंट में खाली प्लांट एंड मशीनरी कवर्ड होगा, यहाँ पे लैंड छोड़ के बिल्डिंग कवर्ड होगा, प्लांट एंड मशीनरी कवर्ड होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन कवर्ड होगा। आप यदि 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 5 करोड़ का सब्सिडी इस स्कीम में हो सकता है। ये सब आइटम पे इनएलिजिबल आइटम है, जैसे ये सब हाँ ये सब एलिजिबल आइटम है। प्लांट एंड मशीनरी है, टेक्निकल सिविल वर्क है, वाटर पाइपलाइन है, DG सेट है, बॉयलर है, ये सब इस स्कीम में इस सब पे सब्सिडी मिलेगी। द कॉस्ट ऑफ द एलिजिबल है, ये एलिजिबल कंपोनेंट है। ये सब इनएलिजिबल है, जैसे सिविल वर्क नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कोई स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो एक्सक्लूडेड है, कॉस्ट ऑफ लैंड एक्सक्लूडेड है, स्पेयर पार्ट्स कंज्यूमर्स वो है, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सक्लूडेड है, पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्सक्लूडेड है, सेकंड हैंड मशीन, ओल्ड मशीन और रिफर्बिश मशीन ये एक्सक्लूडेड है, एक्सपेंडिचर ऑन पेंटिंग मशीनरी एक्सक्लूडेड है, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, कंसल्टेंसी, ये सब जो प्रोजेक्ट पोस्ट कंपोनेंट है ये बेनिफिट के लिए एक्सक्लूडेड है। ये गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने स्कीम को एक्सटेंडेड किया 31 नवंबर 2020 तक। थैंक यू। इसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, जिसका कोई भी क्वारी हो आई विल ट्राई टू रिजोल्व, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, इन द मीन टाइम मैं विश्रुप को बोलता हूँ कि MSME का रजिस्ट्रेशन क्या होता है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, विश्रुप उसको एक्सप्लेन करेगा कि कैसे लेना है, एक डेमो भी दिखाने की चेष्टा करेगा आपको। ठीक है, क्या क्या डाटा चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। विश्रुप। ओके, हाँ थैंक यू सुनील जी। अभी मैं MSME रजिस्ट्रेशन, अभी आप लोगों को सबको मालूम है कि उद्योग आधार का रिप्लेसमेंट उद्यम रजिस्ट्रेशन आ गया है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बहुत लोग, आप लोग शायद लिए होंगे, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं लिया है या कंफ्यूजन है इसको लेके, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका प्रोसीड्यूर बताने का, क्या क्या इंफॉर्मेशन लगता है वो बताने का। तो जैसे 1 जुलाई 2020 से ये नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हुआ है। पहले तो उद्योग आधार मेमोरेंडम एंड उद्योग आधार एक्नॉलेजमेंट मिलता था फॉर MSME, लेकिन उसमें क्या था, ओनली प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट आप सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे जो भी आप देते थे, डालते थे, उसके हिसाब से माइक्रो, स्मॉल या मीडियम आपका यूनिट का कैटेगराइजेशन होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी रिवाइज डेफिनेशन के हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों को कंसीडर करते हुए एक एंटरप्राइज का कैटेगराइजेशन फिक्स होगा, आइदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो इसके कारण उद्योग आधार को रिप्लेस किया गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन से। मेन जो चेंज आया है दैट इज आपका प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट लिंक किया गया है आपके ITR से, और आपका टर्नओवर लिंक किया गया है आपका GST रिटर्न से। तो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ, मेरा एक छोटा सा PPT है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है। ओके, दिख रहा है। ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए
जैसा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन साइट पे आप जाएंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, एक तो नया एंटरप्राइज के लिए, नया एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और दूसरा है एग्जिस्टिंग के लिए। अभी नया डेफिनेशन मतलब रिवाइज डेफिनेशन जो आया है उसके हिसाब से बहुत लोग हैं जो लोग पहले लार्ज स्केल माना जाता था, अभी वो लोग एमएसएमई के दायरे में आ गए हैं। तो हो सकता है वो लोग, उन लोग के पास कोई एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन था नहीं, तो उनके लिए ये न्यू ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। क्या किसी ने लिया नहीं है, उनको जानकारी नहीं था, उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन। और जिनका ऑलरेडी ईएम पार्ट 2 या यूएएम उद्योग आधार लिया हुआ है उनके लिए तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस एमएसएमई तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री इसमें एमएसएमई के दायरे में आता है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस में हो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ट्रेडिंग इंडस्ट्री इज नॉट कवर्ड अंडर एमएसएमई। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन में आप देखिएगा कि आईटीआर से लिंक होगा और टर्नओवर आपका जीएसटी से लिंक होगा। इसमें जब कोई रजिस्ट्रेशन करता है, ये बहुत बार मैंने देखा कि लोग इनकॉर्पोरेशन डेट और कमर्शियल प्रोडक्शन डेट दोनों एक ही डाल देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपका कमर्शियल डेट एक अलग चीज होना चाहिए और इनकॉर्पोरेशन डेट एक अलग होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग डाल देता है, लेकिन तो ये गलत है। तो आप लोग बहुत केयरफुली भरिएगा, जो आपका इनकॉर्पोरेशन डेट है उस जगह पे इनकॉर्पोरेशन डेट दीजिए, और कमर्शियल प्रोडक्शन जिस दिन आपका पहला कमर्शियल प्रोडक्शन आया है वो डेट आप कमर्शियल प्रोडक्शन के जगह पे डालिए। फिर एनआईसी कोड आप बहुत ध्यान से चूज कीजिएगा, जो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड है, जो आपसे रिलेटेड है, जो रेलिवेंट है, आप वही कोड चूज कीजिए। अगर आप मल्टीपल कोड चूज करना चाहते हैं तो मल्टीपल एनआईसी कोड भी चूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एंटरप्राइज एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ये एकदम साफ साफ जो नोटिफिकेशन आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसमें क्लियर कर दिया गया है। आपके एक कंपनी के पैन के अगेंस्ट में जितना सारा यूनिट लिंक्ड है, जितना सारा जीएसटी लिंक्ड है, तो वो कंपोजिट आपका टर्नओवर और प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट को लेके उस यूनिट का क्लासिफिकेशन होगा। अगर 10 यूनिट है पूरा इंडिया में, वेस्ट बंगाल और आउटसाइड वेस्ट बंगाल मिला के, तो टोटल सारा यूनिट्स का जो भी टोटल आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी रहेगा, WDV वैल्यू एंड टर्नओवर रहेगा, उसके हिसाब से आपका आपके एंटरप्राइज का कैटेगराइजेशन होगा। कोई अगर नया यूनिट है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है और उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, उनका कोई आईटीआर नहीं है, इन दैट केस वो सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकता है। वो वैलिड उस फाइनेंशियल ईयर तक रहेगा। मतलब अभी कोई लेता है सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस में, तो वो 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड रहेगा। और अभी तो उद्यम रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट भी चालू हो गया, ये जस्ट 2-3 दिन पहले ही चालू हुआ है, तो किसी ने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए एक उद्यम रजिस्ट्रेशन भरने के लिए। जैसा फर्स्ट, सबसे पहले अगर कोई नया एंटरप्राइज है जो फर्स्ट टाइम ले रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो उनके लिए तो उनका डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर, जो भी आपका एंटरप्राइज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से उनका मोबाइल लिंक्ड आधार नंबर चाहिए। तो मोबाइल लिंक्ड आधार नंबर डालने के बाद जो भी आधार कार्ड में उनका नाम है, एंटरप्रेन्योर का नाम है, वो आपको डालना पड़ेगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन का टाइप आपको देना पड़ेगा, वो ड्रॉप डाउन है कि प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, LLP, प्रोप्राइटरशिप जो भी है आप वो दे सकते हो। फिर पैन नंबर कंपनी का डाल दीजिए, या प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का डाल सकते हैं उसमें। फिर आईटीआर टाइप वो पूछेगा आपसे कि आप आईटीआर कौन सा भरे हो। अगर आईटीआर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, नहीं तो आप जो भी आईटीआर 3, 5, 6 या 4 जो भी आप आईटीआर आप भरे हैं उसका डिटेल दे दीजिए। फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सोशल कैटेगरी, आप स्पेशली एबल्ड है, येस और नो, ये सब आपको बेसिक चीज आपसे पूछेगी। ये पहले उद्योग आधार में भी पूछ सकता। फिर नेम ऑफ द एंटरप्राइज, जो पॉइंट नंबर 9 है, ये ऑटोमेटिकली आपके पैन से, कंपनी का पैन से लिंक हो जाएगा, ये आप चेंज नहीं कर सकते। फिर पॉइंट नंबर 10 में लोकेशन ऑफ द प्लांट, अगर आपका मल्टीपल लोकेशन है, एक से ज्यादा आपका यूनिट लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको सारा डिटेल्स एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देना पड़ेगा। फिर ऑफिशियल एड्रेस आप भर दीजिए अपना। जनरली हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि ऑफिशियल एड्रेस जो आप भरेंगे वो आप अपना यूनिट का ही दीजिए, हमारे पास है, क्योंकि उसमें क्या है कि आप
कोई आपका ऑफिस मान लीजिए कि कोलकाता में है और आपका यूनिट दुर्गापुर में, कोई ना फोन आवे दिलीप भाई, इन दैट केस आपका डीआईसी जो होगा वो कोलकाता का ले लेगा। तो सारो ऑफिशियल एड्रेस सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट देंगे નું उस છે। हिसाब से डीआईसी चूज हो जुलाई जाएगा। થી ચાલુ છે, નવેમ્બર સુધી છે, નવા જૂના બધાય કરી શકે। फिर आपका कि प्रीवियस EM2 या यूएम है या नहीं है, तो अगर आपके पास कोई EM2 या यूएम है तो उसका नंबर डाल दीजिए। फिर इनकॉर्पोरेशन डेट दीजिए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जिस दिन से आपका प्रोडक्शन चालू है उसका डेट दे दीजिए। बैंक डिटेल्स दीजिए आप वहाँ पे, IFSC कोड, अकाउंट मतलब बैंक नेम, अकाउंट नंबर, ये सब। फिर मेजर एक्टिविटीज आपको देना पड़ेगा कि आप सर्विस में डील करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, तो मेजर एक्टिविटी आपका जो भी आपको चूज कर लीजिए। फिर NIC कोड्स एज पर योर एक्टिविटी, लाइक मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका चूज कीजिए, सर्विस है तो सर्विस का चूज कर लीजिए जो रेलिवेंट है आपसे। अगर आपका दोनों है तो आप दोनों का NIC कोड चूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है आपका टोटल उस एंटरप्राइज में, उसका डिटेल आप मेल, फीमेल एंड अदर्स के हिसाब से बाइफरकेट करके दे दीजिए। फिर डिप्रिशिएटेड कॉस्ट जो अभी ले रहा है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का ले रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का 19-20 का अभी फाइनल नहीं हुआ है, ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं अभी रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। तो 18-19 में अगर आपका कुछ है, आपने रिटर्न फाइल किया तो ऑटोमेटिकली वो उसको ले लेगा, वो आपको भरने का कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 20 में देखिए, कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस। ये जो कॉस्ट है ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे देना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 20 में जो है, जो भी आप देंगे वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से डिडक्ट हो जाएगा। टोटल टर्नओवर जो है वो भी आपका GST से लिंक होगा। अगर 18-19 फाइनेंशियल ईयर में आपका जो भी टर्नओवर है उसके हिसाब से होगा, वो भी आपको भरना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वो फेच करेगा डेटा। एक्सपोर्ट टर्नओवर अगेन आपका कुछ है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे आप दे दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिडक्ट करेगा। फिर पॉइंट नंबर 23 एंड 24 में ये जस्ट पूछ रहा है कि आप कोई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल में आप इंटरेस्टेड हो क्या नहीं रजिस्टर करने में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यस कर दीजिए। और ट्रेड्स पोर्टल है, ट्रेड रिसीवेबल्स एक गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, उसमें भी आप इंटरेस्टेड हो तो आप यस कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये सब इंफॉर्मेशन इनको देना पड़ता है उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब हम लोग प्रोसेस में आते हैं। नाम चेंज કરીને ઉદ્યમ કરીને ચાલુ કરી જાવ। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का साइट है आपका, जो ऑथेंटिक साइट है, दैट इज www.udyamregistration.gov.in। ये गवर्नमेंट का साइट है। आप ये साइट पे जाएंगे तो आपके स्क्रीन पे यही सामने ऐसा एक पिक्चर आएगा। आप देखिए नीचे जैसे दो ऑप्शंस है, मैंने एकदम शुरू में बताया था कि एक नया एंटरप्राइज के लिए है जिनका ऑलरेडी लिया हुआ EM2 या UM। तो मैं आज तो आपको नया एंटरप्राइज का दिखाऊंगा, एग्जिस्टिंग के लिए भी सेम ही है, डिफरेंस कुछ खास है नहीं। नए एंटरप्राइज के लिए जैसे आधार नंबर चाहिए, आप अपना जो एंटरप्रेनर है उनका आधार नंबर देना पड़ेगा और एंटरप्रेनर का नाम एज पर आधार आपको डालना पड़ेगा। फिर वैलिडेट करने के बाद इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो UAM अगर किसी का आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है तो भी हो जाता था, लेकिन अभी तो मोबाइल से लिंक मैंडेटरी हो गया, क्योंकि मोबाइल से लिंक नहीं होगा तो OTP नहीं जाएगा। तो मोबाइल लिंक, जिसका आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, वही उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फिर पैन वेरिफिकेशन होगा, आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, वो ड्रॉप डाउन मिलेगा, वहां से आप चूज कर लीजिए। पैन नंबर है तो यस कीजिए, तो ऑटोमेटिकली पैन का ऑप्शन आ जाएगा, आप पैन नंबर डाल दीजिए कंपनी का। फिर आपसे पूछेगा कि आपने ITR 18-19 का भरे है या नहीं भरे। अगर आपने ITR भर चुके हैं तो फिर यस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके बगल में ये ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा ITR आपने फिल किया है, तो वो डाल दीजिए। फिर GST है या नहीं है आपका वो पूछेगा, वो आप डाल दीजिए, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। फिर पैन वेरिफिकेशन के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा कि नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ये नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर जो पॉइंट नंबर 5 पे आपको दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली पैन से लिंक्ड होगा। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, ये फ्रीज रहेगा ये कॉलम। तो यहाँ ऑटोमेटिकली पैन से जो नाम है, पैन के हिसाब से जो नाम है पैन कार्ड के हिसाब से वही आएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल ID डाल दीजिए। फिर बीच में जो आपको एक कॉलम दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं है कि किसको SC या ST या वुमेन OBC एंटरप्राइज बोलता है, इसका एक डेफिनेशन दे दिया है।
जो भी एंटरप्राइज का शेयर होल्डिंग 51 या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग या उनके पास है, एससी के पास है, एसटी के पास है, या ओबीसी के पास है, तो वो, या वुमेन के पास है, तो उसको वो एंटरप्राइज कहा जाता है। एससी है तो एससी एंटरप्राइज, एसटी है तो एसटी एंटरप्राइज। इसका एक चार्ट है, इसमें कुछ हम लोग का कुछ लेना देना नहीं। फिर सोशल कैटेगरी आपका जो भी है, जनरल, एससी, एसटी, वो आप डाल दीजिए, जेंडर डाल दीजिए, आप स्पेशली एबल्ड हो या नहीं हो वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आपको यूनिट का नाम आ जाएगा पॉइंट नंबर 11 पे। ये जगह पे आप अपना यूनिट का नाम चेंज कर सकते हो। अगर कहीं पे कुछ जैसा मेसर्स आ जाता है बहुत टाइम, तो मेसर्स को आप हटाना चाहते हो आपके कंपनी के नाम के पहले, तो वो आप कर सकते हो, वो एडिट कर सकते हो आप। फिर प्लांट या यूनिट नेम डाल दीजिए। अगर सेम एंटरप्राइज का ही नेम आपका प्लांट या यूनिट नेम है तो वो डाल के ऐड मोर कर दीजिए। उसके बाद ऐसे देखिए, ऐड मोर करने से ये ऐसे बॉक्स में आ जाएगा। अगर दूसरा तीसरा अलग अलग नाम है यूनिट का, तो ऑटोमेटिकली अब ऐड मोर करेंगे तो नीचे 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 आ जाएगा। फिर लोकेशन ऑफ द प्लांट, आपका प्लांट लोकेशन जो भी है आप डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए ये ऐसे टेबल फॉर्म में आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये एक के बाद एक नीचे नीचे आ जाएगा। फिर ऑफिशियल एड्रेस डालिए। ऑफिशियल एड्रेस हम लोग ये सजेस्ट करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि आपका जो यूनिट एड्रेस है आप वो डाल दीजिए यहाँ पे। क्योंकि क्या है, इसके बेसिस पे आपका डीआईसी फिक्स हो जाता है। सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ ये चीज। डीआईसी तो देखिए, जो जहां आपका फैक्ट्री है वो डीआईसी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर ऑफिशियल एड्रेस आपका यूनिट दुर्गापुर में है और आप कोलकाता या हावड़ा हुगली का डालते हैं, तो वो डीआईसी आ जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि ऑफिशियल एड्रेस आप यूनिट का ही डालिए। आपका एक से ज्यादा यूनिट है तो कोई भी एक यूनिट का डाल दीजिए। फिर आपसे ये पूछेगा कि प्रीवियस आपका कोई EM2 या UM है या नहीं है। ये दोनों के लिए पूछता है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए भी पूछता है, री रजिस्ट्रेशन में भी पूछता है। तो आपके पास है तो आप ये EM2 या UM में क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा उसका नंबर देने का। नहीं है तो इन्हें कर दीजिए। फिर एंटरप्राइज का वो इनकॉर्पोरेशन डेट, प्रोडक्शन आया तो प्रोडक्शन डेट, बैंक डिटेल्स, मेजर एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, वो डालना पड़ेगा। फिर NIC कोड यहाँ से चूज करना पड़ेगा आपको। मैन्युफैक्चरिंग चूज करेंगे तो पहले मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का NIC कोड मिलेगा। अगर सर्विस है तो सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपको सर्विस का NIC कोड मिलेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट कितना आप जनरेट किया है, मेल फीमेल अदर्स में आपको डालना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पे जितने भी आपको जगह दिख रहा है, आप कहीं कोई भी कॉलम का ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। आपको उसमें नॉट एप्लीकेबल या हाइफन या कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अदर्स में अगर कुछ नहीं है तो 0 डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एज पर 1819। ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ये अगर आपका 1819 का रिटर्न फाइल किया हुआ है तो ये जगह फ्रीज रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे आप जा रहे हो तभी ये जगह आपके लिए ओपन रहेगा डालने के लिए, अदरवाइज ये जगह फ्रीज रहेगा। वो लोग ITR से लिंक कर लेगा। आप खाली B जो बॉक्स है इसमें अपना पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर कुछ कॉस्ट है वो डाल सकते हो, तो वो माइनस हो जाएगा A से। फिर यहाँ पे टोटल फिगर आ जाएगा। टर्नओवर का भी सेम चीज है। अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोसेस में जा रहे हो तो टर्नओवर आप लिख सकते हो खुद, नहीं तो ये भी A जो बॉक्स है ये फ्रीज रहेगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर का जगह उस टाइम ओपन हो जाएगा। आप एक्सपोर्ट टर्नओवर कुछ है तो आप डाल सकते हो, तो नेट टर्नओवर आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर अगेन ये जिम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आप इंटरेस्टेड हो तो यस कर दीजिए, ट्रेड्स में इंटरेस्टेड हो तो यस कर दीजिए। फिर DIC यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ऑफिशियल एड्रेस मैंने नहीं भरा था। ऑफिशियल एड्रेस भरेंगे तो ऑटोमेटिकली DIC आ जाएगा। फिर आप सबमिट कीजिए, OTP आएगा आपका, जो नंबर आपने मोबाइल नंबर अपने एप्लीकेशन में डाले वो OTP आएगा। फिर OTP डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा और आपके सामने ये एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। फिर आप 3-4 दिन बाद उनका एक ऑप्शन है उनका साइट पे, फिर जाके प्रिंट सर्टिफिकेट ऑप्शन में जाके उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP मोबाइल में OTP लेके आप वैलिडेट कीजिए। अगर आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है तो आपको ऐसा एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। मैं इसके साथ साथ जैसा सुनील जी ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंसेंटिव स्कीम के बारे में डिस्कस किया आप लोग से, मैं भी एक माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए एक इंसेंटिव पॉलिसी है, मैं वो डिस्कस करूंगा अभी। दैट इज क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है
इसमें माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैपिटल सब्सिडी दिया जाता है फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर कोई भी माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करता है, नया मशीन्स खरीदता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस थ्रू टर्म लोन, मतलब बैंक से टर्म लोन लेकर, तो उनको इस स्कीम के अंदर बेनिफिट मिल सकता है कैपिटल सब्सिडी का 15%, मैक्सिमम 15 लाख रुपीस का सब्सिडी मिल सकता है। इसमें देखिए 51 सेक्टर्स टोटल कवर्ड है। 51 सेक्टर्स में ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ सेक्टर्स इसमें आ जाता है, जो जनरली जो इंडस्ट्रीज है, फूड प्रोसेसिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कॉरुगेटेड बॉक्स हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स का हुआ, फाउंड्री हुआ, स्टील हुआ, आपका कोई किसी का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हुआ, तो ऑल काइंड्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ सेक्टर्स ही आ जाता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। और इनका एक मशीनरी का गाइडलाइन है, तो अगर आप कोई भी नया मशीन लेते हो और वो मशीन क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के गाइडलाइन से मैच होता है, तो उस पे आप 15% कैपिटल सब्सिडी क्लेम कर सकते हो। ये 15% सब्सिडी आपको मिलेगा लोन अमाउंट और मशीन वैल्यू विच एवर इज लोअर। मतलब आपने लोन लिया 1 करोड़ का और आपका मशीन आपने लिया उसमें से 50 लाख का, तो 50 लाख कम हुआ तो उस पे आपको 15% सब्सिडी मिलेगा। मैक्सिमम 15 लाख तक का सब्सिडी लिमिट है, यानी 1 करोड़ का मशीन वैल्यू या लोन अमाउंट जो कम रहेगा उसी पे 15% 15 लाख रुपया मिल सकता है। लेकिन SC/ST एंटरप्राइज होता है तो शेड्यूल ट्राइब होता है, तो उनके लिए एक अलग से बेनिफिट है, दैट इज 25% अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25 लाख। उनके लिए 10% 10 लाख रुपया ज्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट हैंड मशीन लेना पड़ेगा, नया मशीन लेना पड़ेगा। आप सेकेंड हैंड मशीन या रिफर्बिश्ड मशीन, ठीक है ना, ये सब अगर आप फैब्रिकेटेड मशीन ये सब लेते हैं तो इसमें बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसका कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसा मशीन के लिए आपका मतलब वो मशीन एलिजिबल होना चाहिए, मशीन के लिए लोन होना चाहिए, ठीक है। लोन आपका मिनिमम 3 साल के लिए लेना ही पड़ेगा। आप ऐसा सोचेंगे कि सब्सिडी के लिए 1 साल के लिए आप लोन ले लिए, सब्सिडी मिल जाएगा और रिपेमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं है। लोन आपका 3 साल कंटिन्यू बैंक में चलना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपके पास MSME रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा, मतलब उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन तो होना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। तो अभी देखिए ये स्कीम 17-18 से 19-20 तक वैलिड है। 19-20 मैं इसकी स्कीम को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि 19-20 का अभी भी क्लेम चल रहा है। ड्यू टू कोविड इसका क्लेम का जो पीरियड है वो डिले हो गया है। तो आपके सामने गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, गाइडलाइन है क्लेम सबमिशन का, उसका मतलब पेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसा जिसका जो भी MSC यूनिट, माइक्रो स्मॉल यूनिट का लास्ट डिसबर्समेंट 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2020 तक हुआ है, वो अभी 26 दिस मंथ 26 सितंबर से लेके अभी 7 अक्टूबर तक वो क्लेम अपना सबमिट कर सकता है। ये जो सब्सिडी क्लेम है ये लिंक है लास्ट डिसबर्समेंट से। आपका लास्ट डिसबर्समेंट अगर जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ 2020 हुआ है तो आप इस स्कीम के अंदर बेनिफिट ले सकते हो, आप एलिजिबल हो सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका अदर्स जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो। तो लेकिन फर्स्ट वाला जो फेज है वो तो चला गया, एक्सटेंडेड डेट भी जिनका आपका अक्टूबर से दिसंबर का जो पीरियड था वो खत्म। तो अभी कोई भी अगर आप लोग में से कोई ऐसे हो कि जिन्होंने लास्ट डिसबर्समेंट दिया जनवरी से मार्च के अंदर 2020 में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे तरफ से यही था, थैंक यू। किसी का कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। कोई कुछ किसी को कुछ पूछना है, कुछ लिखने? हाँ, किसी को अगर बांग्लादेश लेके जैसा मिस्टर भरूका ने इतना अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया, अगर उसमें आप लोगों का कुछ क्वेरी है या उद्यम रजिस्ट्रेशन, कोई भी सब्जेक्ट में आप लोगों का कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। बोला सर मेरा क्वेरी है सर। हाँ बताइए, बोला भैया। सर मेरे को वो पेटेंट के बारे में नहीं समझ में आया। पेटेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं, पेटेंट रजिस्ट्रेशन अलग चीज हो गया, वो आप करवा सकते हैं। उस पे जो खर्चा लगेगा, यदि बांग्लादेश में प्रोजेक्ट यदि एलिजिबल है तो उसका रिइंबर्समेंट हो जाएगा। अच्छा ठीक है।
जो खर्चा है वो सब। हाँ, गवर्नमेंट से रिइंबर्स हो जाएगा पेटेंट रजिस्टर, सब्जेक्ट टू कि आपका प्रोजेक्ट एलिजिबल होना चाहिए सब्सिडी के लिए। हाँ। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्कीम है, ठीक है, वो मेरे पास हम्म। रेडिली अवेलेबल नहीं है, उसमें भी पेटेंट का खर्चा रिइंबर्स होता है। अरे वहाँ वो हाइड्रा खड़ा है, बोलता है, कोई मतलब कोई बोलने वाला ही नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। बोल रहे हैं अभी हम बैंक में अप्लाई किए हैं, मेरा एक पीवीसी दुर्गापुर में डुबॉल ब्रांड का पीवीसी पाइप प्लांट ऑलरेडी है, ठीक है। अभी हम उसका अभी हम मेरा नेक्स्ट जमीन में हम एचडीपी पाइप प्लांट बैठाने जा रहे हैं। अब फ्रंट में हम पीवीसी टैंक का ही फैक्ट्री बैठाने जा रहे हैं। तो एचडीपी टैंक जो बैठाने जा रहे हैं वो टोटली न्यू प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारा जमीन का बगल में बैठ रहा है, तो उसको क्या एक्सपांशन कहा जाएगा या न्यू कहा जाएगा? नहीं, आपका नाम क्या हुआ सर? गौतम मित्रा। हाँ, गौतम बाबू ऐसा है कि आप जो नया प्रोजेक्ट लाएंगे वो कंपनी नया है ना कि पुराना कंपनी है? ना, एग्जिस्टिंग, मेरा ब्रांड नेम है ना, डुपॉल ब्रांड नेम है, इसलिए हमारा एग्जिस्टिंग कंपनी में हम लाएंगे। जिस कंपनी में ला रहे उसके कंपनी में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है कि नहीं? फुल्ली मैन्युफैक्चरिंग है सर। नहीं, यदि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है और उसके बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, नया आइटम होने से भी? हाँ, कुछ भी आइटम हो, अच्छा, नया लोकेशन हो, नया आइटम हो, एग्जिस्टिंग लोकेशन हो, कुछ भी हो, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग में आप कुछ भी काम करेंगे डेट विल बी द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होने से एक्सपेंशन के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा, इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी है। कैपिटल तो है नहीं सर, दुर्गापुर कॉर्पोरेशन का अंडर में कैपिटल शायद है नहीं। हाँ, कॉर्पोरेशन में कैपिटल सब्सिडी नहीं है, तो खाली आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, एसजीएसटी वाला भी नहीं मिलेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा, ओनली इंटरेस्ट सब्सिडी। दूसरा अगर न्यू टैंक वाला टैंक नया जो एचडीपी टैंक बनता है उसको भी अगर डालेंगे दूसरा लैंड में और नाम अगर एक ही रहता है, यूनिट 1 2 करके, कोई फायदा मिल सकता है क्या दुर्गापुर पॉलीमर? यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 2 एक कंपनी में जितना भी यूनिट डालेंगे, सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट सब एक्सपेंशन होगा। 1 2 जो भी करें एक्सपेंशन ही होगा। एक्सपेंशन होगा। जिस कंपनी में 1 अप्रैल 2019 के पहले कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट है या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, उसके बाद कुछ भी करने जाएगा डेट विल बी द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। दैट विल नॉट बी ट्रीटेड, जो भी हम लाएं यहाँ प्रोजेक्ट जो भी लाएं वो एक्सपेंशन में आएगा। हाँ हाँ। थैंक यू सर। और विश्वविद्यालय पूछ लीजिए, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ क्वेरी है क्या? बोला भाई, हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ मेरे पास स्टैंडर्ड क्वेरी आता है, उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाँ हाँ सर बोल रहे जैसे हमारा ये दुर्गापुर में जैसे अपना राइस मिल गया था 2019 में। हेलो, बताइए मनोज जी। हाँ मनोज जी बोलिए, नाम बताइए अपना। बोल रहे हैं अपना एक राइस मिल है बर्दवान में। नाम बताइए। आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार अग्रवाल। हाँ मनोज जी बोलिए। बोला राइस मिल है बर्दवान में। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सुन, हाँ तो उसके लिए सर क्या कुछ मिल सकता है अभी हेल्प? नहीं, राइस मिल में आपने इन्वेस्टमेंट कब किया था? 2019 में। 2019 में, ठीक है। 2019 में फर्स्ट टाइम कॉमर्शियल प्रोडक्शन लेके आया था ना, कि उसके पहले भी कुछ है? नहीं, उसके पहले नहीं था, उसके पहले ऐसे शॉप उप है, लेकिन इसमें इंडस्ट्री लाइन में फर्स्ट टाइम था। हाँ, तो आपका एलिजिबल होगा। आपने उद्योग आधार लिया हुआ क्या उसके लिए? उसका नहीं, बैंक लोन है 2 करोड़ का। अच्छा, नहीं वो अच्छा है, आपका प्रोजेक्ट आपको पुराने स्कीम में कवर्ड हो जाएगा, लेकिन आपने उद्योग आधार या एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है क्या? नहीं। अच्छा, तो उसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू आएगा। स्कीम में बोला हुआ है जिनका कॉमर्शियल ऑपरेशन 1/4/18 के बाद, या 1/4/18 या उसके बाद, और 31 मार्च 19 के पहले आता है, ठीक है, तो वो पुराना स्कीम में कवर्ड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उद्योग आधार उसका लेना चाहिए, मतलब पहले से। अभी उद्योग आधार नहीं मिलेगा, अब तो उद्यम मिलेगा, उसके लिए उद्योग आधार एक क्राइटेरिया है। अच्छा, तो आप एक बार चेक करा लीजिए, मेरे हिसाब से उद्योग आधार होना चाहिए आपका।
अच्छा, रहने से उसमें क्या फैसिलिटी मिलेगा? नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा लेने के लिए? आप एक बार या विश्वरूप उद्यम से में बात जाने कर से? विश्वरूप से बात कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प कर देगा क्या करना है। उनका कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ हाँ, मिलेगा? विश्व वो कॉन्टेक्ट हम नंबर शेयर दे करेगा। देंगे आपको। मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, जिनको भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो मेरे साथ एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आंसर है। सर एक बात बता रहा है, हमारा यहाँ जो तो डीएमसी का ये इलाका है, हम लोग का म्युनिसिपैलिटी इलाका है, तो ये इसमें एक क्राइटेरिया है जो इंडस्ट्रियल लैंड। सर हमारा तो यहाँ कुछ कुछ ऐसा उद्योग है, छोटे छोटे ये है फैक्ट्री सब है, जो लोगों का ये नहीं है, इंडस्ट्रियल लैंड नहीं है ना, इंडस्ट्रियली कन्वर्ट कराना पड़ेगा आपको। जितने मैंने जैसे हमारे यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी इलाका में है, हाँ। और लोग एक छोटे छोटे उद्योग बना के रखे हैं, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल लैंड है क्राइटेरिया नहीं है वैसा, उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बैंक से टर्म लोन होना चाहिए। बांग्लाश्री में वो कवर्ड नहीं होगा। बांग्लाश्री में नहीं कवर होगा ना। বিশ্বর বাবু আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দেবেন। আমি ফোন নাম্বারটা শেয়ার করে দিচ্ছেন। আমি দিয়ে দিয়েছি অলরেডি, একটু চ্যাট বক্সটা দেখুন, দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। বেকারি ইউনিট কি কোনো রকম ভাবে মাইক্রো ইউনিটের মধ্যে আসছে? नहीं, इन्वेस्टमेंट को तो আছে प्लांट एंड मशीनरी তে, ये इक्विपमेंट है अराउंड 12 lakhs মতো। हाँ, तो माइक्रो यूनिट আসবে ওটা। ওকে, এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা স্কিম আসছে, ঠিক আছে, গাইডলাইনটা আসলো না, কোন মাইক্রো ইউনিটটা যদি ফুড প্রসেসিং এ এক্সপেনশন করে 35% সাবসিডি আছে, ম্যাক্সিমাম 10 লাখ আছে। ওকে, আপনি যদি 30 লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট করবেন, 35% মানে আপনি 10 লাখ টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন ওখানে। এটার জন্য আমাকে কোথায় অ্যাপ্লাই করতে হবে? না, এখন গাইডলাইনটা আসলো না, ডিটেইল গাইডলাইন আসলো না। ওকে, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মাইক্রো ইউনিট এন্ড ফুড প্রসেসিং কে প্রমোট করার জন্য একটা স্কিম দিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, মানে এটা আসবে, ওয়েটিং ফর দ্য স্কিমটা তো এসেই গেছে, কিন্তু স্কিমে যে গাইডলাইনটা আছে না, অপারেশনাল গাইডলাইন, সেটা ইয়েট টু বি অ্যানাউন্সড আছে, সেটা প্রসেস আছে। এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের স্কিম আছে। থ্যাংক ইউ। উদ্যোগ আধার থাকলে কি উদ্যম আধার করতে হবে? হ্যাঁ, উদ্যোগ আধার থাকলে উদ্যম রেজিস্ট্রেশন আপনাকে নিতে হবে। এখন উদ্যোগ আধারটা ভ্যালিড আছে হচ্ছে 31st of March 2021 অবধি, কিন্তু সেই পিরিয়ডটা শেষ হওয়ার আগেই আপনাকে মাইগ্রেট করতে হবে উদ্যম রেজিস্ট্রেশনে। ঠিক আছে, নিয়ম হিসাবে তো দেখুন আপনার হাতে সময় আছে, কিন্তু এখন অনেক সময় ব্যাংক বা গভর্নমেন্ট অফিস বলছে না আমি লেটেস্টটাই চাই, তো আপনি মাইগ্রেট করিয়ে নিতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা, মাইগ্রেটটা করে নিতে হবে। হ্যাঁ, মাইগ্রেট করিয়ে নিতে হবে। ঠিক ঠিক। ठीक है, तो मैंने एक दो बार और कॉल बुक किया है तो हाँ उसका बेटा मैं पता नहीं की तरह तो coordinating operations perspective and next point with respect to coordinating आवाज बोला भैया, और किसी का कुछ क्वेरी है क्या?
इसमें हेलो। विश्वरूप का नंबर दिया हुआ है, विश्वरूप का मेल आईडी है। किसी को भी आगे भी कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो, दे कैन आस्क, दे कैन कांटेक्ट द विश्वरूप चक्रवर्ती, ही विल ट्राई टू क्लैरिफाई द मैटर। बोला হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ আমি বলছি প্রজেক্টে যেটা দেখালো প্রজেক্টরের যে রুলগুলা ওইটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিতে পারো না? বিশ্বরূপ কোয়ারিটা কি আছে বুঝো একবার। প্রজেক্টে আমরা যে জিনিসগুলো দেখালেন রুলগুলো সেটা আমাদের চেম্বার্স অফ কমার্সে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিতে বলছি। আচ্ছা, আপনার নামটা একটু বলবেন? আমার নাম তরুণ কান্তি কোনার। আচ্ছা ও ঠিক আছে, পিপিটিটা শেয়ার করে দেবে বিশ্বরূপ। হ্যাঁ পিপিটি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, শেয়ার করে দেব, ভোলাদাকে দিয়ে দেব আমরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতে একটা অনেক বুঝতে পারলাম, ওগুলো দেখে নেবো একটু। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমরা যে পিপিটি বানিয়েছি, যে সামারি আছে প্রজেক্টটা, সেটা করিয়ে দিব আমরা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ सर। हेलो हेलो। हाँ सर, लास्ट ईयर मेरा इसमें स्मॉल में रजिस्ट्रेशन था, तो इस ईयर ये मेरा टर्नओवर एक्सेस हो गया, ठीक है। तो मोर देन 15 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर भी ज़्यादा है। तो मेरा जो लास्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन है वो कितना दिन का वैलिडिटी है? वो 31 मार्च 2021 तक वैलिड है, ठीक है। उसके बाद आपको नया रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको। मेरा ये मतलब 2021 तक 31 मार्च तक वैलिडिटी है। हाँ हाँ, तब तक वैलिडिटी है। तो मेरे को ये जो मेरा पुराना रजिस्ट्रेशन है, तो मेरे को क्या उद्यम में नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपको करवाना विश्वरूप से बात कर लीजिएगा, ये हेल्प कर देगा आपको। अभी आप पुराने रजिस्ट्रेशन से काम चला लीजिए, ठीक है। आपको लगेगा कन्वर्ट कराना तो बात करेगा, ये कर देगा कन्वर्ट। ठीक है, ओके सर। और नहीं सर, एक चीज पूछ रहे थे कि मान लीजिए ये जो आप लोग आधार उद्योग से ये जो नया रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या मेरे नहीं करने से भी चलेगा ना मेरा? क्योंकि मेरा वैलिडिटी तो उसका 2021। हाँ 2021 तक है, तब तक ये वैलिड आपका उद्योग आधार वैलिड है ना? हाँ तब तक वैलिड है। नहीं है तो कि सर मेरा इस ईयर टर्नओवर ज्यादा हो गया 19-20 में, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वैलिड है तब तक। ओके सर, थैंक यू। पहले से हम देखे ही नहीं, हमको पूरा समझ में ही नहीं है, आधा बीच में देख लिया, उसके बाद मुझे इतना कुछ पूछ लिया और क्या चाहिए महाराजा। और किसी को कुछ जानना है? नहीं तो सर कंटिन्यू करते हैं। ये आप कंक्लूड कर दें क्या भोला भैया? हाँ हाँ सर। তাহলে আমরা এটাকে কনক্লুড করছি। ওকে স্যার। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू टू ऑल फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। थैंक्स। इन केस যদি কোনো কোয়ারি থাকে, দিস ইজ দ্য মেল নাম্বার অফ বিশ্বরূপ চক্রবর্তী মেল আইডি। we are from the Suvidha Consultant. Our office is in Bhawanipur. We are extending service across all the sectors. We are extending services in the entire West Bengal. Thank you Bhelo Bhaiya for giving us the opportunity to share our opinion on Banglasri. थैंक यू कवि दत्ता साहब। कवि दत्ता साहब कहाँ पे है? उनसे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ मेरा। प्रेसिडेंट साहब कहाँ पे? निकल गया क्या? उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा, वो जहाँ वहां से नेट नहीं उनका पकड़ पा रहा है। पुरुलिया में है। पुरुलिया में, हाँ ऐसा हो सकता नेट का इशू।
कोई बात नहीं, थैंक यू भोला भैया। और आगे कभी भी एमएसएमई लेके कोई प्रोग्राम करना आप बताइएगा, हम लोग ऑलवेज है। नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कि अब चेंबर में ही एक लाइव हो, थोड़ा सा नहीं, लाइव भी कर सकते सिचुएशन हैं, में। और लाइव भी कर सकते हैं, और आप इसको हर 3 महीने में एक प्रोग्राम कर सकते हैं। जिसका कोई प्रॉब्लम हो भी आप इंटरनेट पे कर लीजिए, हर 3-3 महीने पे किसी का भी कोई इश्यू है, हम 1-2 पैनलिस्ट को ले आएंगे तो वो आपको एडवाइस करेंगे। हमारे यहाँ मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स में हर 1 महीने 2 महीने प्रोग्राम होता है, हेल्प डेस्क लगता है, ठीक है। किसी का जो इश्यू है वो डिस्कस कर सकते हैं, तो अपने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। उसमें डीआईसी से भी किसी को ले लेंगे, ठीक है। डीआईसी से भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। कोई किसी का इंडस्ट्री लगाने में कोई इश्यू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो दे कैन डिस्कस। नेक्स्ट मीटिंग में हम कोशिश करेंगे बैंकर्स को भी ले लेंगे, 1-2 बैंकर्स। हाँ, बैंकर को ले ली। अपने एक हेल्प डेस्क चालू करिए, मतलब विश्वरूप आपको मॉडल बता देगा कैसे करना है आपका दुर्गापुर। हेल्प डेस्क चालू कर देंगे। हाँ, और इसमें क्या है ना, हम 1-2 पैनलिस्ट को लेके आ जाएंगे, डीआईसी से भी एक जन रह जाएंगे। तो उससे क्या होगा, 2 महीने 3 महीने में करिए, किसी का भी कोई इशू है कुछ है तो वो डिस्कस कर सकते हैं, उनको रास्ता मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, सुनील सर। हाँ, थैंक यू भोला भैया, थैंक यू सर। हाँ, सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। कंक्लूड कीजिए। हाँ, ओके, थैंक यू सर, आप कंक्लूड कीजिए सर। विश्व कंक्लूड करे दाओ। हाँ, thank you to all for your participation. I think the webinar was informative, and we look forward for long-term association with Durgapur Chamber of Commerce and Industry and with all the members of the association. Thank you all. Have a good day.